Hello students, in the previous video we have studied about glycolysis, TCA cycle and electron transfer chain. So in this video we are going to discuss about cell division. It's very important. It will ask for 3 marks, 2 marks depending upon the type of questions. Now we are going to discuss with cell division. So cell division means what? It is the division of cell, right? One cell gives rise to sometimes 2 cells, sometimes 4 cells. We'll see why cell division is important over here. See, cell division is very essential for all the living organisms. देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे, see all this part of this body, it is made up of cells, right? अगर किसी की कारण के वजह से यहाँ का सेल अगर डॅमेज हो चुका आहे, कुछ लगा हुआ हो, काहीतरी खरचटला असेल, काय असेल, इथला सेल निघून गेला असेल, तर थोड्या दिवसांनी अतला सेल नवीन भरून येतो. सो फॉर दिस व्हॉट इज रिक्वायर्ड? सेल डिव्हिजन इज रिक्वायर्ड. म्हणजे जो काही सेल असेल या ठिकाणी तो सेल काय करणार आहे? नवीन सेल डिवाइड करणार आहे, नवीन सेल प्रोड्यूस करणार आहे आणि मग सेल प्रोड्यूस केल्यामुळे न्यू सेल्स तयार होतील, ऑफस्प्रिंग सेल्स किंवा डॉटर सेल्स तयार होतील आणि मग इथला जो काही सेल डॅमेज झालेला आहे किंवा इथे सेल्स लॉस झालेले आहेत ते सगळे लॉस झालेले सेल्स या ठिकाणी भरून निघणार आहेत. क्लियर आहे? ओरिजिनल नंबर ऑफ सेल्स कॅन बी मेंटेन्ड ड्यू टू द सेल डिव्हिजन ओनली. दॅट इज वाय इट इज व्हेरी इसेन्शियल फॉर द ऑल द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. ठीक आहे. नाउ विल सी सेकंड aspects. The growth and development is possible only due to cell division only. Growth and development, right? Without cell division, no growth will be there. Again here, no growth will be there, no development will be there. For the growth and development of whole body, what is required? Cell division is required. The third point. Offsprings are produced only through the cell divisions. That takes place in parents. Parents के अंदर क्या होता है? Cell division, right? And due to the cell division, offsprings are produced. Offsprings मतलब न्यू सेल्स, न्यू डॉटर सेल्स और न्यू यंग वन्स. मुलं जन्माला येतात ते कशामुळे येतात? सेल डिव्हिजन मुळे येतात. ठीक आहे. मुलं मुली जन्माला येतात ते कशामुळे येतात? सेल डिव्हिजन ओनली. सो सेल डिव्हिजन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नेक्स्ट वन, fourth one, sexual and asexual reproduction both require cell division. Okay, sexual reproduction and asexual. Once again मी या ठिकाणचं उदाहरण देतो तुम्हाला. या ठिकाणी नवीन सेल तयार झालेले आहेत, तर हे नवीन सेल्स असेक्शुअल पद्धतीने तयार झालेले आहेत. कारण हा सेल्स तयार होण्यासाठी 2 पॅरेंटची आवश्यकता आहे का? अजिबात नाहीये. फक्त एकाच पॅरेंट सेल पासून नवीन सेल्स तयार झालेले आहेत, म्हणून याला आपण काय म्हणणार आहोत? Asexual reproduction. See, when the daughter cells are produced from single parent, and that is called as asexual reproduction. So for the asexual reproduction also cell division is required. For sexual one also cell division is required. For both the things cell divisions are required. Now cell division, it is of 2 types. Okay, number 1, mitosis and meiosis. See, mitosis, it is generally it is related with the asexual reproduction, and meiosis, it is related with the sexual reproduction. We will see the difference between mitosis and meiosis. कभी कभी mitosis meiosis का difference भी फाइनल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है. Therefore, we should have to know the difference between mitosis and meiosis. Okay, we'll see mitosis, meiosis. First point of mitosis, we will see. In mitosis, chromosome number does not change. Chromosome number, suppose यहाँ पे chromosome, ये देखो, ये suppose ये nucleus है, right? ये cell है पूरा, और inside the cell nucleus is there, and inside the nucleus chromosomes are there. In the human body, 23 pairs of chromosomes are there. Means what? 46 chromosomes are there. 23 pairs means what? 46. तो हर एक क्रोमोसोम का कैसे होता है? डिप्लॉयड होता है, पेयर्ड होता है. हर एक क्रोमोसोम पेयर्ड होता है. यहाँ पे पेयर्ड मतलब 2n. n का मतलब होता है क्रोमोसोम, एंड ये क्रोमोसोम 2n मतलब डबल है, पेयर्ड है,
जोडीने असतात, ठीक आहे. सो इन माइटोसिस क्रोमोसोम नंबर डज नॉट चेंज, मतलब 46 है ना तो 46 ही रहते हैं. डिप्लॉइड सेल रिमेन डिप्लॉइड विदाउट चेंज, ये डिप्लॉइड सेल कहते हैं. जिस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम नंबर्स और क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड, दैट टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड डिप्लॉइड सेल. तो यहां पे ये जो क्रोमोसोम है डिप्लॉइड सेल है. डिप्लॉइड सेल से न्यू डॉटर सेल्स आर फॉर्म, वो भी कैसे है, डिप्लॉइड है. इससे न्यू सेल फॉर्म हो रहे, वो भी कैसे, डिप्लॉइड. 2n डिप्लॉइड. समझ में आया. सो एक डिप्लॉइड सेल से दूसरा डिप्लॉइड, दूसरे से थर्ड वाला डिप्लॉइड, हमेशा के लिए डिप्लॉइड होते रहता है. क्लियर है. ऑल द क्रोमोसोम्स इट इज ट्रांसफर्ड एज इट इज विदाउट चेंज. ठीक है, यहां पे देखेंगे मियोसिस में देखेंगे. इन मियोसिस द क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड टू हाफ, द डिप्लॉइड सेल बिकम्स हैप्लॉइड. यहां पे देखो ये 2n वाला है, 2n वाला मतलब डिप्लॉइड है. डिप्लॉइड का कैसे हो रहा है, ये हैप्लॉइड बन जा रहा है. हैप्लॉइड सेल्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज गैमेट्स. क्रोमोसोम नंबर्स आर नॉट पेयर्ड, दे आर अनपेयर्ड. ठीक है, यहां पे एक क्रोमोसोम गया, यहां पे एक क्रोमोसोम, मतलब यहां पे 46 क्रोमोसोम है तो यहां पे 23 गए, यहां पे 23 आए. इज इट क्लियर. सो गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड हियर नो गैमेट्स, सबके सब डिप्लॉइड है. यहां पे कैसे, हैप्लॉइड है. पेरेंट सेल इज डिप्लॉइड एंड डॉटर सेल्स आर हैप्लॉइड. हैप्लॉइड मतलब अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स. डिफरेंस इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट टू दैट इज वन सेल गिव्स राइज टू टू सेल्स. ये देखो वन सेल गिव्स राइज टू 2, ये वन सेल है तो 2 है. यहां पे वन सेल गिव्स राइज टू 4 सेल्स. ठीक है, वन सेल गिव्स राइज टू 4 सेल्स. n. ठीक है, ये 2 है, ये 2 है. Difference is clear. In the mitosis, one cell gives rise to 2 cells, and here one cell gives rise to 4 cells. Now next to that is, it is essential for growth and development. Okay, it is essential for growth and development. किसी भी ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ और डेवलपमेंट होने के लिए माइटोसिस इज रिक्वायर्ड, एंड हियर इट इज इसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये गैमेट फॉर्म हो चुके हैं, राइट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, गैमेट्स चाहिए. तो गैमेट्स फॉर्म होने के लिए मियोसिस इज रिक्वायर्ड. ओके, नाउ द फोर्थ पॉइंट, it is takes place in somatic cells and germinal cells. Okay, somatic cells means what, those cells which are not taking part in the reproduction, okay, sexual reproduction especially, that type of cells are called as somatic cells. Okay, and here it is takes place only in germinal cells, not takes place in somatic cells. Sexual reproduction में जो सेल्स पार्टिसिपेट करते हैं उसको कहते हैं जर्मिनल सेल्स, एंड दोज सेल्स विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे आर कॉल्ड एज सोमैटिक सेल्स, राइट. सो इन मियोसिस this meiosis is taking place somatic as well as germinal cells, but meiosis is takes place only in germinal cells, not in somatic cells. Clear hai? So these are the some differentiating points between mitosis and meiosis. Any difficulties with this? Okay.